Hello friends, good morning. Myself Dr. Suresh Kumar Palsania, BVSC and AH, MBSc, PhD and NET qualification also. So friends, today I am going to discussing about the new topic of general veterinary surgery, that is hernia. Hernia is very important for exam point of view. In each and every exam, 1 and 2 question will be asking. Okay. So what is hernia? So hernia, what is in this lecture I will be taught what is the hernia, what is the classification of hernia, and what is the diagnosis of hernia, and what is the surgical treatment of hernia in this class. So firstly I am talking about what is hernia. So hernia is the protrusion of an organ through the defect of abdominal wall in natural opening or abnormal opening in which it's lie. Hernia have three content. First is that hernial ring, second is that hernial sac, and third is that hernial content. So firstly I am talking about what is hernia. So I will be write the define of hernia. Hernia is protrusion of organ through the defect in the wall of abdomen. और डिफेक्ट कैसा हो सकता है? इट मे बी नेचुरल ओपनिंग और एबनॉर्मल ओपनिंग एंड abnormal opening. And abnormal opening in which its lies, जिसमें ये खुद रहता है. ओके, सो hernia is a protrusion of organ through the defect of the wall of the abdomen. hernia का मतलब ये है कि abdominal wall या तो नेचुरल ओपनिंग हो एनिमल बॉडी की, या कोई भी डिजीज कोज हुई हो उसकी वजह से कोई ओपनिंग होगी, तो एब्डोमिनल वॉल covers the all visceral organ and thoracic wall covers the all thoracic organ, just like heart and lungs. So in the defect of abdominal wall may causes a sac like structure. Okay, this is the sac of hernia. Okay, so कोई भी अपना ऑर्गन है जो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में है, वो वहां से निकलकर दूसरी जगह आ जाए और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना दे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? हर्निया. Congenital, it may be congenital and acquired. Okay, so next line ये भी लिख सकते हैं, congenital as well as acquired hernia is common in domestic animal. ओके, सो हर्निया के पार्ट्स, तो यहां याद रखना पार्ट्स ऑफ हर्निया. फर्स्ट इज दैट पार्ट्स ऑफ हर्निया. देखिए कौन कौन से पार्ट्स होंगे. सो मैं एक यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. So these are the hernial sac. So these are the hernial sac.
इसको बोलेंगे अपन हर्नियल सैक, हर्नियल सैक। और ये जो आपकी अपन मान लेते हैं, दिस इज द एब्डोमिनल वॉल, दिस एंड दिस, तो दिस इज द एब्डोमिनल वॉल, दिस इज द एब्डोमिनल वॉल। ओके, अब इसके अंदर कंटेंट, ये तो हो गया आपका हर्नियल सैक। अब इसके अंदर कंटेंट देखिए, जस्ट लाइक यहां से ये आ रहा है, ओके, सो दिस इज hernial content. It may be intestine whenever we talking about umbilical hernia. Okay, so ये intestine भी हो सकती है. Whenever we talking about diaphragmatic hernia, the most hernial content is reticulum. Whenever we talking about perineal hernia, the hernial content is urinary bladder, more predisposing organ, just like. Okay, so these are the hernial content. And you can feel this is the hernial ring. इस hernial ring के थ्रू ये एब्डोमिनल जो कंटेंट है वो बाहर आएगा, hernial ring. ओके, सो इसके थ्रू ये hernial ring के थ्रू क्या आएगा, बाहर आएगा. तो these are the content of hernial ring. So parts of the hernial ring is, first is that hernial ring, second is that hernial sac, और third is that hernial content. ओके, लास्ट के अंदर मैं लिख रहा हूं आपके यहां नोट. देखिए, hernial sac is absent in internal hernia, just like diaphragmatic hernia and gut tie. ओके, उसमें hernial sac क्या होता है, एब्सेंट होता है. तो मैं लिख सकता हूं hernial sac is absent in internal hernia, internal hernia. और एग्जाम्पल की बात करें तो डायाफ्रामेटिक hernia, ओके, एंड गट टाई. So these are the example of internal hernia which lacks of the hernial sac. It means hernial sac इसके अंदर absent होता है. Okay, so this is the basic information about the hernia. Okay, next is that classification. देखिए, hernia according to the location. Second है according to the, जो फर्स्ट आपका ए है अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन. इट इज टू टाइप. फर्स्ट इज दैट एक्सटर्नल हर्निया, सेकंड इज दैट इंटरनल हर्निया. इंटरनल हर्निया और फर्स्ट इज दैट एक्सटर्नल हर्निया. ये जो इंटरनल हर्निया है कंसिस्ट ऑफ hernial sac ring plus content. Whenever we talking about internal hernia, lack of hernial sac. Hernial sac is absent in internal hernia. Okay, just example की बात करें तो diaphragmatic hernia, most susceptible species for the diaphragmatic hernia is buffalo. Okay, because in the right side buffalo have weak muscles. In next class I will be taught in detail of different type of hernia. Okay, so DH, and second is that gut tie. So these are the example of internal hernia. और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अम्बिलिकल हर्निया.
वेंट्रल हर्निया, ओके, पेरनियल हर्निया, जहां पे आपको सैक भी दिखेगा, ठीक है, पेरिनियल हर्निया, वेंट्रल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, पेरनल हर्निया, ठीक है, और इंग्वाइनल हर्निया। ओके, second is that according to the function alteration, according to the function alteration, यानी कार्य के हिसाब से जो भी देखें अपन फंक्शनल ऑल्ट्रेशन। तो फर्स्ट इज दैट, इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका, फर्स्ट इज दैट रिड्यूसिबल हर्निया, रिड्यूसिबल हर्निया, ओके, फर्स्ट इज दैट रिड्यूसिबल हर्निया। तो रिड्यूसिबल हर्निया जैसे मैंने आपको बताया था इस डायग्राम के अंदर, देखिए ये जो होती है आपकी एब्डोमिनल वॉल है, ये डिफेक्ट है, ये हर्नियल रिंग है, और ये कंटेंट है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हर्नियल कंटेंट रहता है। व्हेन यू पाल्पेट द हर्नियल रिंग, एब्डोमिनल कंटेंट बैक या पुश्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी और इट्स नॉर्मल पोजीशन, सो दिस इज कॉल्ड reducible hernia. When the hernial content may not be returned into the normal position, it is known as irreducible hernia. Okay, so these are the two types of hernia. Irreducible hernia further categorized in three categories. First is that adhesion hernia, second is that incarcerated hernia, and third is that last is one strangulated hernia. Okay, so अगर hernial content पूरे जा रहे अंदर तो ये रिड्यूसिबल है, अगर ये हर्नियल कंटेंट पूरे नहीं जा रहे हैं तो ये इररिड्यूसिबल हर्निया है। क्लियर? तो देखिए रिड्यूसिबल हर्निया में क्या होगा, व्हेन द हर्नियल कंटेंट्स may be returned or back into abdominal cavity or its normal position. So these are the reducible hernia. Okay, so these are the reducible hernia. अगर second hernia की बात करें अपन, second is that irreducible, irreducible hernia। अगर सेकंड हर्निया की अपन बात करें कि इररिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है, तो देखिए मैंने अभी बता दिया, जब कंटेंट वापस नहीं जा रहे हैं हर्नियल रिंग के थ्रू तो वो क्या कहलाएगा आपका इररिड्यूसिबल। कंटेंट तो है, सैक भी है, लेकिन रिंग के थ्रू वापस नहीं जा रहा, तो इसमें क्या क्या पोजीशन हो सकती है वो भी देखेंगे। तो अपन लिख सकते हैं व्हेन हर्नियल कंटेंट्स may not be returned or back into the abdominal cavity or its normal position। अगर नॉर्मल पोजीशन में नहीं है तो अब देखिए इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब अगर इसमें एक एक की बात करें अपन इररिड्यूसिबल हर्निया में, तो फर्स्ट इज दैट adhesive hernia, और सेकंड इज दैट adhesive hernia, second is that incarcerated hernia।
ओके, और लास्ट इज दैट, लास्ट की अगर अपन बात करें तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। ओके, अब अपन एक एक को देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, व्हाट इज द इनकार्सिनेटेड हर्निया एंड व्हाट इज द अडेसिव हर्निया। ओके, सो फर्स्ट इज दैट अडेसिव हर्निया। अडेसिव हर्निया मींस अडेशन, चिपकना आपस में। तो अडेशन बिटवीन किस किस के बीच में हो सकते हैं, हर्नियल कंटेंट एंड हर्नियल सैक। तो अपन लिख सकते हैं अडेशन addition between hernial content and hernial sac, addition between hernial content and hernial sac। ओके, इनकार्सिनेटेड, इनकार्सिनेटेड, स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब तो ब्लड सप्लाई का कम होना, इनकार्सिनेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए, व्हेन hernial content become too voluminous, जब हर्नियल कंटेंट जो है उनका वॉल्यूम ज्यादा हो लेकिन जो हर्नियल रिंग हो वो क्या हो, छोटी हो, तो रीअपोज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ इंटेस्टाइनल इविसरेशन, इंटेस्टाइन निकल जाती है लेकिन उसको हर्नियल रिंग के, छोटी रिंग के थ्रू उसको रीअपोज करना बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इनकार्सिनेटेड हर्निया। तो व्हेन द हर्नियल कंटेंट बिकम टू वॉल्यूमस थ्रू ए नैरो या थ्रू ए स्मॉल हर्नियल रिंग। ओके, तो व्हेन द हर्नियल कंटेंट बिकम टू वॉल्यूमस replaced to be a small opening through hernial sac, हर्नियल सैक के थ्रू आप इनको वापस रिप्लेस करते हो, ये आपका थोड़ा सा क्या काम है, डिफिकल्ट काम है। व्हेन द प्रेशर अप्लाई ऑन द हर्नियल कंटेंट it may causes complication just like ischemia, gangrene and necrosis of the tissue, that is known as strangulated hernia। अगर strangulated hernia है, पालपेट कर लिया अच्छे से है लेकिन ब्लड सप्लाई वहां की बंद हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से ischemia कोज हो सकता है, necrosis हो सकता है, and after that gangrene will be also develop, so this is known as strangulated hernia। so whenever we talking about strangulated hernia, so what can I written, so देखिए, प्रेशर applied on hernial content may causes some complication like ischemia, necrosis and gangrene। तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्रेशर अप्लाई ऑन हर्नियल कंटेंट, और इसमें भी अगर अपन बात करें तो ब्लड वेसल्स पे, अगर ब्लड वेसल्स पे प्रेशर अप्लाई किया है तो वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी वजह से इस्केमिया, नेक्रोसिस या ये हो सकता है। सो दिस इज अ थ्री पार्ट ऑफ द इरिड्यूसिबल हर्निया। ओके, नेक्स्ट देखिए कंटेंट ऑफ द सैक। अगर कंटेंट ऑफ द सैक के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो फर्स्ट इज दैट एंटेरोसील। Enterocoel means content is that intestine, कंटेंट क्या है, intestine। second is that एपिप्लोसील, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है।
कि इंटेस्टाइन के हर्निया को क्या कहते हैं। ओके, intestinal hernia is also known as enterocele and omentum hernia is also known as epiploccele. You know that very well. What is omentum? Structure या broad ligament supply to hold the intestine in its normal position in the abdominal cavity in the right side. Okay, so if the omentum protrude through the abdominal wall, that is known as omental hernia and it is also known as epiploccele. So content is that omentum. Third is that enteroepiploccele. Intestine प्लस ओमेंटम, अगर ये दोनों कंटेंट एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंटेरोएपिप्लोसील। ओके, अगर फोर्थ की अपन बात करें, हिस्टेरोसील, यूटेरस, ठीक है, हिस्टेरोसील। यू आर नोटेड वन थिंग, दैट इज सील, 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 सील means seal word is specially used for hernia या hernial name nomenclature। तो अगर किसी भी शब्द के पीछे सील आ रहा है, इट मीन्स वो हर्निया के बारे में कह रहा है। हिस्टेरो, हिस्टेरो मतलब यूट्रस। एंटेरो, एंटेरेक्टोमी, टू इंसाइज द टू इंसाइज इंटेस्टाइन, तो एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन। एपी, एपिप्लो मीन्स ओमेंटम और हिस्टेरो मीन्स यूट्रस। रेटिकुलोसील, रेटिकुलम, ऑल ऑफ द कंटेंट ऑफ हर्निया। ये सारे कंटेंट है कि इस कंटेंट में इंटेस्टाइन अगर किसी हर्निया में देखने को मिलती है तो वो एंटेरोसील कहलाता है, और अगर ओमेंटम आपको देखने को मिलती है तो एपिप्लोसील, और अगर किसी हर्निया में रेटिकुलोसील मिलती है तो दिस इज नोन एज। अब ये किस में मिलता है रेटिकुलम, डीएच के अंदर। तो एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। रेटिकुलोसील is also known as diaphragmatic hernia। diaphragmatic hernia को ही क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसील बोलते हैं। ओके, सो यू शुड बी रिमेंबर इट एंड kept in your mind। सो इन नेक्स्ट 1 2 3 4 और 5, इन नेक्स्ट देखिए ओसियोसील। ओसियो, ओसियो वर्ड आ गया, इट मीन्स स्क्रोटल हर्निया। स्क्रोटल हर्निया को क्या बोलते हैं, ओसियोसील बोलते हैं। ओके, और देखिए ओम्फेलोसील, दिस इज अम्बिलिकल हर्निया and another name is that exophallus। exophallus and omphalocele is the name of umbilical hernia। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज दैट बुबेनोसील। ओके, बुबेनोसील मीन्स इंग्वाइनल हर्निया। एंड लास्ट इज दैट, लास्ट क्या बच गया, ओसियोसील हो गया, वेसिकुलोसील, वेसिकोसील। वेसिकोसील मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जो कंटेंट है वो किस में देखने को मिलता है, पेरिनियल हर्निया में। ये जो कंटेंट है वो किस में देखने को मिलता है, पेरिनियल हर्निया में। इसके अलावा भी कुछ हर्नियाज हैं, इसके अलावा भी कुछ हर्नियाज हैं, सम अदर हर्निया जिनका कोई नाम नहीं है। तो जस्ट बात करें तो डायाफ्रामेटिक हर्निया फर्स्ट इज दैट, सेकंड इज दैट फीमोरल हर्निया, हर्निया, ठीक है। थर्ड इज दैट स्क्रोटल हर्निया
या इंग्वाइनल हर्निया एक ही बात है, ठीक है, लेकिन नेम इज डिफरेंट इन स्क्रोटल एंड इंग्वाइनल हर्निया। ओके, स्क्रोटल हर्निया हो गया, फीमोरल हर्निया हो गया, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, ठीक है, और एक और है हाइटल हर्निया। ओके, और अगर अपन बात करें तो पेरनियल हर्निया, और अपन बात करें तो वेंट्रल हर्निया, और अगर अपन बात करें तो लेटरल हर्निया। तो दीज आर द ऑल टाइप ऑफ हर्निया। ये पोजीशन के हिसाब से है। लेटरल मीन्स अगर लेटरल के अंदर आपको हर्नियल सैक दिख रहा है तो वो लेटरल। वेंट्रल पोर्शन मीन्स नीचे वाला जो पोर्शन है टूवर्ड्स द स्टर्नम, तो वो वेंट्रल हर्निया कहलाएगा। पेरिनियल हर्निया मीन्स प्रोट्रूजन ऑफ द organ through the defect of diaphragm of पेरिनियल कैविटी या पेल्विक कैविटी, जो डायफ्राम है उसके थ्रू निकले तो, ठीक है, पेल्विक हर्निया भी हो सकता है। हाइटल हर्निया, हाइटल पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ esophagus. Esophagus has three parts: cervical, thoracic and hiatus. Hiatus is open into the rumen. जो लास्ट वाला पार्ट है अगर वो हर्निएट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? हाइटल हर्निया कहलाएगा। सो दीज आर द ऑल टाइप ऑफ हर्निया। सो यू शुड बी क्लियर इन डायग्राम। देखिए, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग ऑन द वेंट्रल पोर्शन and at the umbilicus. So these are the umbilical hernia. These are the umbilical hernia. ओके, ये umbilical hernia है। और congenital और acquired ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो umbilical hernia कैसा होता है? congenital होता है, ठीक है। This is the ventral portion. This is the ventral portion. This. So this is the ventral hernia. वेंट्रल हर्निया दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्रोट्रूजन हो गया। अब इस वेंट्रल हर्निया में कई बार यूट्रस या ब्रॉड लिगामेंट भी आ जाते हैं इतनी नीचे तक, ठीक है, सस्पेंसरी जो टेंडन्स होते हैं। तो दिस इज दी वेंट्रल हर्निया। अब देखिए ये वेंट्रल भी है और ये इतना तक पोर्शन जो आपका है वो क्या है? लेटरल भी है। तो अपन इसको कह देंगे वेंट्रोलैटरल हर्निया। वेंट्रोलैटरल हर्निया, दिस। ओके, we can see in the figure this so this is the lateral hernia। आपको मैंने डायग्राम से दिखा दिया एक एक lateral hernia। ओके, सो ये क्या है? आपका lateral hernia है। देखिए this is the tail part, ये आपको दिख रहा होगा, and this fluctuating swelling this part, so this is the perineal hernia। पेरिनियल हर्निया इन कैटल। और अगर यहां पर देखें, ये तो आपका एनएस है, ये तो आपका एनएस, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सूजा हुआ, ठीक है, ये आपका पेरिनियल हर्निया है। पेरिनियल हर्निया इन डॉग। पेरिनियल हर्निया इज कॉमन इन डॉग, या मोस्ट ससेप्टेबल स्पीसीज फॉर पेरिनियल हर्निया इज डॉग, ठीक है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। and diaphragmatic hernia, most susceptible species for diaphragmatic hernia is that buffalo in right side। हालांकि however diaphragmatic hernia are also present in cattle, dog and horse, but these are the common hernial conditions। तो आपको डायग्राम में मैंने बता दिया है, ये वेंट्रल हर्निया है, ये देखिए अम्बिलिकस रीजन यहाँ पर होता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ कॉन्जेनिटल हर्निया, and this is the fluctuating swelling and sac like structure on the ventral portion of the animal, so this is known as ventral hernia। and we can see in the diagram number 3, half position is lateral and half position is ventral, so this is the ventrolateral hernia। okay, and you can see in the diagram this dog is suffering from perineal hernia। this dog is suffering from perineal hernia because outpouching and fluctuating swelling at around the anus, in it may be in right side and it may be in left side। so okay,
So this is perennial hernia also encountered in cattle. Okay, and this is lateral hernia, complete lateral hernia. In next figure देखिए this, ये आपके क्या है, स्क्रोटम है ये आपके, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ वाला, ये जो इतना सा पार्ट है, तो दिस इज द इंग्वाइनल हर्निया, दिस इज द इंग्वाइनल हर्निया। अब देखिए इंग्वाइनल हर्निया और स्क्रोटल हर्निया में ज्यादातर बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। तो इंग्वाइनल हर्निया में आप देख रहे होंगे ये जो मैंने एरो लगा रखा है ये वाला पोर्शन, तो ये इंग्वाइनल कैनाल है। व्हेन यू प्रेस योर फिंगर मे अपवर्ड इन द इंग्वाइनल कैनाल, सो ओके testis is in normal position, but sometime in scrotal hernia जब प्रेशर ज्यादा होता है तो ये टेस्टिस भी क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और भी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंग्वाइनल हर्निया, इंडिकेशन ऑफ एरो। ओके, यू कैन सी ए रेडियोग्राफ, सो दिस इज द डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया क्यों है, देखिए डायफ्रामेटिक हर्निया, you know very well the shape of diaphragm is dome shape. Okay, so this is the shape, ये यहाँ पर कंटिन्यूएशन में है जहां मैं लाइन इंडिकेटेड कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर डिसअपियर हो गया, तो ये जो पार्ट है आपका, ये इतना सा जो पार्ट है वो डिसअपियर हो गया, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डिसअपियर ऑफ डायाफ्रामेटिक लाइन। ठीक है, डायाफ्रामेटिक लाइन यहाँ पर क्या होगी, डिसअपियर। अब इसका एक्सरे से ही कैसे पता चला अपने को, हाउ कैन यू डायग्नोस इट, बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल हर्निया। सो व्हेन वी टेकन ए रेडियोग्राफ एंड वी कैन आइडेंटिफाई दिस एनिमल इज सस्पेक्टेड फॉर diaphragmatic hernia, so this is the x-ray of buffalo. Okay, because more prone species of diaphragmatic hernia is buffalo, इसलिए अपन ने ये एक्सरे की यहाँ फोटो लगाई है। अब देखिए दिस फिंगर, ये जो रोटेट कर रहा है आपका, दिस इज द स्क्रोटल हर्निया। ठीक है, या इंग्वाइनल हर्निया भी बोल सकते हैं, पूरी जा रही है इंग्वाइनल हर्निया इन डॉग। और ये देखिए आप, ये स्क्रोटम देखिए, ये जो पोर्शन अगर आपको दिख रहा होगा, दिस पोर्शन इज लार्ज, सो दिस इज द स्क्रोटल हर्निया इन डॉग। स्क्रोटल हर्निया, ये आपका क्या है, स्क्रोटल हर्निया है। ठीक है, ये देखिए फिंगर पूरी जा रही है, हर्नियल रिंग पूरी तरह से फील हो रही है। यहाँ पर आपको हर्नियल रिंग फील नहीं होगी क्योंकि इंटरनल हर्निया या गट टाई है। गट टाई इसी में होंगी, जब आगे क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा व्हाट इज द गट टाई। सो दिस इज द ऑल photographs of different hernia in different animals. Okay, and in the last class causes, treatment and symptom। अब देखिए कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले अपन कोजेज को डिस्कस कर लेते हैं। कोजेज क्या हो सकते हैं, पहला है ट्रॉमेटिक, ड्यू टू ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से हर्निया बन गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रॉमेटिक हर्निया। यही कारण हो सकता है, या तो जन्मजात है या कोई ना कोई ट्रॉमा होगा, तो ट्रॉमा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रॉमा। ओके, तो याद रखना मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ हर्निया इज ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा ज्यादा कारण है वेंट्रल एब्डोमिनल। पेरिनियल हर्निया और डायफ्रामेटिक हर्निया में वीकनेस हो जाती है डायफ्राम की। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम की और उधर जो डायफ्राम है उसकी वजह से वो हर्निया होता है। बट व्हेन एवर यू टॉकिंग अबाउट वेंट्रल हर्निया, लेटरल हर्निया, वेंट्रोलेटरल हर्निया, ठीक है, ये उसके थ्रू होती है, तो ये ट्रॉमा है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो एग्जाम्पल में वेंट्रल और लेटरल हर्निया। इन्फेक्शियस हर्निया, इन्फेक्शियस में क्या होगा, ड्यू टू द इंफेक्शन, ड्यू टू द इन्फेक्शन
विच प्रिवेंट रिडक्शन, जो रिडक्शन को रोकेगा। सो ये कॉमन कॉजेज है, ठीक है। अब अगर अपन सिम्टम की बात करें इसके अंदर, तो सिम्टम या डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, तो डायग्नोसिस की अगर अपन बात कर लेते हैं इसमें, डायग्नोसिस, swelling on affected part, ठीक है, ये हो सकती है आपकी। दूसरा आपका क्या हो सकता है, फेल्ट हर्नियल रिंग बाई पाल्पेशन। भाई हर्निया है कि नहीं है, वो कैसे करोगे। तीसरा आप एक्सप्लोरेटरी पंक्चर भी कर सकते हैं, पंक्चर इज हेल्पफुल टू डिफरेंशिएट एब्सस, सिस्ट और हीमेटोमा, ठीक है। अगर आप एक्सप्लोरेटरी पंक्चर करके देख रहे हो तो एब्सस हीमेटोमा इनके बारे में अपने को पता चल सकता है। अब दूसरा देखिए, ओ डायग्नोसिस करें तो बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी किसमें यूज होगा ज्यादातर, कॉमनली यूज्ड इन इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया के अंदर ये क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी और जो प्लेन रेडियोग्राफी है वो क्या हेल्प करेगी अपनी, इट मे बी हेल्पफुल टू दी आइडेंटिफाई द हर्नियल कंटेंट, ठीक है। कंटेंट को फिक्स करेगी ये कि क्या है या नॉर्मल स्ट्रक्चर को। तो प्लेन और कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। अगर स्ट्रैंगुलेटेड की बात करें तो मैं लिख सकता हूं इन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया एनिमल तो एब्डोमिनल पेन, फीवर, ओके, एब्डोमिनल पेन भी फील कर सकता है और फीवर भी फील कर सकता है। अब नेक्स्ट आपका आता है ट्रीटमेंट। ये ब्रीफ नॉलेज है ओनली हर्निया का, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा एक एक। तो बाई हर्नियोरेफी, बाई हर्नियोरेफी, और सेकंड है बाई हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोरेफी मीन्स टू क्लोज द hernial ring by vertical mattress suture, वर्टिकल मैट्रेस सूचर लगा के आप हर्नियोरेपी यानी सिलाई करना, ठीक है। क्लोजिंग बाय वर्टिकल मैट्रेस, सॉरी वर्टिकल नहीं, ओवरलैपिंग सूचर, ओके सॉरी, ओवरलैपिंग सूचर, ओवरलैपिंग सूचर। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही क्लास में, ठीक है, ओवरलैपिंग सूचर। लेकिन डीएच में, बट इन डीएच डायाफ्रामेटिक हर्निया में कौन से सूचर यूज लेते हैं, कंटिन्यूअस लॉक स्टिच, ओके। एंड बाय हर्नियोप्लास्टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूज या बाय यूज ऑफ सिंथेटिक मैश। और ये कब करते हैं हर्नियोप्लास्टी, व्हेन हर्नियल रिंग
is large in size. Okay, so these are the basic knowledge of hernia. In next class, अब अपन एक बार से रिकैप कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए पहला आपका आता है हर्निया, ठीक है। अब अगर अपन हर्निया की बात करें तो नेचुरल ओपनिंग के थ्रू भी हो सकता है, और ये हर्निया के डिफाइन है, दिस इज द हर्नियल कंटेंट और दिस इज द हर्नियल सैक और ये हर्नियल रिंग हो गई, ठीक है। इंटरनल हर्निया जिसमें सैक एब्सेंट होता है, हर्नियल सैक इज एब्सेंट, ठीक है। हर्नियल सैक इज एब्सेंट, हर्नियल सैक इज एब्सेंट इन इंटरनल हर्निया, ठीक है। एग्जाम्पल इज जस्ट गट टाई एंड डायफ्रामेटिक हर्निया। ओके, अब लोकेशन के हिसाब से बात करें तो लैक्स ऑफ हर्नियल सैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन से एग्जाम्पल है, डायफ्रामेटिक हर्निया एंड गट टाई, ठीक है। रिड्यूसिबल हर्निया, ये कोई खास बात नहीं है, जो रिड्यूस हो जाए कंटेंट, इसमें एडेसिव हर्निया होगा। इनकार्सिनेटेड और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, यह आपके जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। ये पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। तो ठीक है, जो हर्नियल कंटेंट बिकम टू वॉल्यूमिनस, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगर हर्नियल कंटेंट साइज में ज्यादा है, वॉल्यूमिनस का मतलब साइज में लार्ज है, और आपकी ओपनिंग कैसी है, स्मॉल ओपनिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकार्सिनेटेड। और जब ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, ये कंटेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। whenever we talking about the content of sac, this is very important. So in this, देखिए एंटेरोसील इज द हर्नियल कंटेंट इज दैट इंटेस्टाइन, एपिप्लोसील में ओमेंटम, एंटेरोप्लीसील में इंटेस्टाइनल ओमेंटम, हिस्टेरोसील में यूट्रस एंड सील वर्ड, ठीक है। सील वर्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ओसियोसील में स्क्रोटल हर्निया, सो ये इंपॉर्टेंट है आपका ओसियोसील, ओके। ओसियोसील, ओम्फेलोसील, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वेसिक्लोसील, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जो बुबेनोसील है, ये आपका आरपीएससी में पूछा गया है, पीएससी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। और ओसियोसील भी आपका किस में पूछा गया है, जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी दीज आर द टाइप ऑफ अदर हर्नियास। नेक्स्ट आपको ये दिख ही गया होगा, जितने भी डायग्राम मैंने बताए हैं ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये पेल्विक हर्निया, पेरनियल हर्निया है, ये एनएस है, ये वेंट्रोलेटरल है, ये आपका पेरनियल हर्निया कैटल में है, ये ऐसे है, ये लेटरल है। और अगर अपन बात करें तो इंग्वाइनल हर्निया, और दिस इज द डायफ्रामेटिक हर्निया, डिसअपीयरेंस ऑफ डायफ्रामेटिक लाइन, ठीक है। और दिस इज द इंग्वाइनल हर्निया एंड दिस इज द स्क्रोटल हर्निया। आफ्टर दैट ट्रोमा मैन कोजेज है, डायग्नोसिस इस बेस पे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट बाई हर्नियोरेपी एंड हर्नियोप्लास्टी। और सूचर हमेशा कौन से लगाते हैं, दिस ओवरलैपिंग सूचर इंपॉर्टेंट है, बट कंटिन्यूअस लॉक स्टिच ये किसके अंदर लगाते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट, etiological factor and symptoms and diagnosis of the different hernia in different animal. I am talking about only important hernia for exam point of view, just like perennial hernia, inguinal hernia, gut tie, diaphragmatic hernia and umbilical hernia. Okay, umbilical hernia क्या होता है, congenital ये मैंने लिखा कि नहीं, देखिए congenital and acquired hernia is common. congenital का मतलब एट बर्थ, और एक्वायर्ड का मतलब आफ्टर बर्थ, ठीक है। एनाटॉमिकल डिफेक्ट एट बर्थ एंड एनाटॉमिकल डिफेक्ट आफ्टर बर्थ इज नोन एज acquired affection, acquired hernia. So okay, so this class is completed. Thank you.